السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبشر المؤمنین۔ محترم و مکرم و معزز سامعین، حاضرین و ناظرین اکرام، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کا شکر و احسان، اس کی توصیفات، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی حمد و ثنا، جس نے ہمیں اور آپ کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور ہم سبوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر اپنی طور پر بہترین عبادات، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، یہ سب کر سکے۔ اور اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا یقیناً شکر گزار بننا چاہیے کہ بالکل ہمیں توانا و تندرست رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اور جو بھائی اس مہینے کی آمد کے بعد بیمار پڑ گئے یا بیماری میں مبتلا ہو گئے، اللہ انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، اللہ ان کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ آنے والے دنوں میں روزہ مکمل کر سکے، اور مجموعی طور پر اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا درس سورۃ النساء آیت نمبر 85 یہاں سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے کہا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی بھی بھلائی یا اچھائی کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ ہے۔ من یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بھی برائی یا بدی کی سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کے لیے ایک حصہ ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت مذکور کے اندر دو چیزوں کا بیان ہوا، ایک اچھائی اور ایک برائی، اور دونوں کے تعلق سے ایک بہت بڑی بات نبی اللہ رب العالمین نے، جس کو کہہ سکتے ہیں لوجیکل بات، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ برائی نہیں کرتے ہیں لیکن کرواتے ہیں، سمجھا جی؟ بہت سے لوگ اچھائی نہیں کرتے لیکن کرواتے ہیں۔ اب ان دونوں میں جو بیس اور بنیاد اللہ نے بیان کیا وہ آیت کے الفاظ ہیں۔ پہلا جو ٹکڑا ہے آیت کا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، تم میں سے جو کوئی بھی بھلائی یا پھر اچھائی کی سفارش کرے، سفارش سے مراد کسی کو تلقین کرے کہ بھائی دیکھو نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن وہ خود کام نہیں کر رہا۔ یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ ہو گیا کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھا رہا ہے۔ جیسے اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اسے بھی روزے کا ثواب ملے گا، لیکن جس کو جو روزہ دار افطار کر رہا ہے اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بعض لوگ اس حدیث سے کیا سمجھتے ہیں کہ مثلا ہم نے کسی کو روزہ دار کو افطار کروا دیا تو اس کا روزہ کا ثواب ہم کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، وہ ثواب جو روزہ رکھا ہے اس کو ملے گا، اس کی طرح ہم کو بھی ملے گا روزے کا ثواب۔ بس سمجھا رہی ہے؟ اب اس پہ کوئی آدمی روزہ نہ رکھے اور افطار پارٹی کروا دیں، بس سمجھا رہی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں
लेकिन अल्लाह ने दौलत दिया तो इफ्तार पार्टी बड़े आला पैमाने पर होता है, 100-50,000 लोग आते हैं खाने। तो क्या ऐसे में क्या हालत है? वही बात अल्लाह ने यहाँ बयान किया, मैं यशवा शफाअतन हसनतन, अगर कोई अच्छाई की सिफारिश करता है, वो उस पर अमल पैरा है, यकुल्लहु नसीबुम मिनहा, तो उसके लिए भी उसमें से कुछ हिस्सा है। हम लोग पाबंद है, नमाज पढ़ते हैं, किसी को नमाज की हुक्म दे रहे हैं, अपनी नमाज पढ़े, वो पढ़े ना पढ़े, क्योंकि हमने अच्छाई की तलकीन की, अच्छी बात बताई, तो कुछ सवाब हमको भी मिलेगा, है ना। कि नेकी ये है कि कोई सदका भी कर दे तो नेकी है, अगर मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर बात करते नेकी है। अल्लाह रसूल ने कहा कि अपने मुसलमान भाई से सिर्फ हंस के बात कर लो, हाँ भाई खैरियत है, बस चल जाइए, अल्लाह ने आपको सवाब भी दिया। क्यों? आप अपने मोमिन भाई से हंस के बात करें, ये भी नेकी है ना। अल्लाह कह रहा सिफारिश करेंगे अच्छाई या भलाई की, तो उसमें से भी आपको हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप उस पर अमल पैरा नहीं है और अच्छाई की तलकीन कर रहे हैं, तो काम तो आपका अच्छा है, लेकिन काम का सवाब इस वजह से आपको नहीं मिलेगा कि आप खुद उस पर अमल पैरा नहीं। लिमा तकुलूना मा ला तफअलून, ऐ ईमान वालों तुम बात कहते क्यों, तो करते नहीं। अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, तो इसका मतलब ये भी नहीं लेना है कि अच्छा ठीक है हम अमल नहीं करते तो किसी को अच्छी बात ना बताए, ये हरगिज माना नहीं है। हमने कहा कि हंस की बात करें तो नेकी है मुसलमान भाई से, लेकिन यहाँ असल जो फैक्ट बताना मकसद है कि कभी हम ये ना सोचे कि हम करें क्या ना करते किसी को हम करवा देते हैं, नहीं, गलत बात है सब। अल्लाह ताला पहले हमें हमारे अमल के बारे में पूछेगा। हमें से कोई ऐसा है कि अल्लाह उसको दूसरे के अमल के बारे में पूछेगा कि आप उसके बारे में बताइए या आप इनके बारे में बताइए? कभी नहीं अल्लाह पूछेगा। अल्लाह पहले हमसे पूछेगा और नेकी के काम में पहले हम उस पर अमल करें। अल्लाह के रसूल की शख्सियत क्या थी कि आप जो बात बोलते थे पहले करते थे आप, तभी तो आपको लोग सब मानते थे, मोहब्बत करते थे। ये नबी सिर्फ बोलता नहीं है, ये नबी बोलने के साथ साथ पहले करके दिखाता है। जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा कि जमाने जाहिलियत के अंदर अगर कोई औरत बेवा हो जाती, उसके शौहर इंतकाल कर जाता, तो उसको काली परछाई मारा जाता था कि अरे ये तो आते थे अपने शौहर को खा लो, ये तो डाइन है, ये फला है, ये फला है। और देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई मनहूस नहीं होता है। उसके हस्बैंड को जाना था, चला कि अल्लाह ने बुला लिया, इससे बीवी कैसे काली परछाई हो जाएगी, डाइन कैसे हो जाएगी। और न सिर्फ ये कि आपने कहा, बल्कि आपने पहला निकाह एक बेवा से किया, क्या नहीं किया, प्रैक्टिकल काम किए। तो आपको कौन अच्छा चाहिए, वो आदमी जो सिर्फ बोले या वो आदमी जो बोले भी या करे भी, है ना। यही वजह थी कि अल्लाह के रसूल को सब लोग मोहब्बत करते हैं कि आप सिर्फ बोलते नहीं थे, आपने पहला निकाह खदीजा से जो किया तो बेवा औरत थी, पहले शौहर से बेटा भी था। यहाँ पे अल्लाह वही कह रहा है कि जो कोई भी अच्छाई या भलाई या अच्छी चीज की सिफारिश करेगा तो उसमें से उसके लिए कुछ हिस्सा है। तो एक फायदा ये हो गया कि हम अमल करें तो हमको सवाब मिलेगा। दूसरा का एक क्या फायदा हो गया कि अगर हम किसी को सिखा दे तो सवाब मिलेगा, हम रोजा रहेंगे तो सवाब मिलेगा, किसी को इफ्तारी करवा दें और सवाब मिलेगा, है ना। तो इफ्तारी से मुराद इफ्तार पार्टी नहीं होता है, आप पड़ोस में इफ्तार भेज दीजिए, आप दावत दीजिए अपने अहल को, बहन है, बहनोई है, भाई है, रिश्तेदार है, आइए भाई हमारी दावत में आइए, इफ्तार करवा देना हम, ये भी सवाब है। तो जो मोमिन सवाब का भूखा होगा वो तो मौका खोजेगा, है कि नहीं, कि भाई एक तो रोजा हम रखे, उसका सवाब तुमको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पे भरोसा है, चलो थोड़ा और रोजे के अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। क्या भाई, दो दोस्त को फोन किया, आप हमारी इफ्तार करिए, भाई कोई प्रोग्राम नहीं, बस कैजुअल इसी तरीके से आइए। मकसद हमारी नियत क्या है, नियत ये है कि रोजे में और सवाब मिले। कोई जरूरी किसी इफ्तार पार्टी हो, घर में दावत दीजिए, नहीं कोई आ रहा है भाई वहां पहुंचा दिए, पड़ोस में पहुंचा दिए, वो कहेंगे कि भाई हमारे पास कोई बात नहीं, हमारी खुशी है। ऐसा होता है, ये चीज हमारे माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीबों को हम इफ्तार देते हैं, अपनों को भी देते हैं, पड़ोसियों को भी देते हैं, जो अच्छा बनता है। तो वो चीज अल्लाह ने यहाँ पर बयान की। और उसी के अगेंस्ट में अल्लाह ने कहा वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन, और अगर कोई बुराई की सिफारिश करे, क्या है कि बुराई की तरफ उभार दे किसी को, कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, आजकल उतना होता है, ठीक है, कर दिया, आपने नहीं किया तो सामने वाला बेवकूफ है जो बोल रहा कर भी नहीं कर रहा, वो करवा रहा है। अब इस माने कि आदमी को चोरी करा अपना घर में, वो देख रहा है कि अगर हम चोरी करें तो पकड़ जाएंगे, तो किसी ने कुछ चढ़ा दिया, निकाल लो, हम है बाहर, जाओ लो, हम समझ लेंगे, तो आराम से निकाल के निकलो ना, पकड़ा गया वो तो कानून के हिसाब से जो पकड़ा जाएगा वही ना मुझे कहलाएगा। अब वो कितना भी कह दे कि हमको फला दी भेजा, वो सब मसला नहीं, आपकी है, आपको सजा होगी।
تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ مومن کبھی برائی کی سفارش کرے گا ہی. ایک مومن ایک مسلمان کبھی بھی کسی کو بری چیز کی دعوت نہیں دے گا, کوئی نہیں دے گا. جو مومن ہوگا, جو مسلمان سچا ہوگا, اور جس کے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو خود بھی برا کام کرے گا, دوسروں کو بھی کہے گا کر لو, کوئی بات نہیں. آج کل تو ایسا ہو رہا ہے, نارمل چیز ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ, اللہ نے جملہ کو بدل دیا. اوپر میں اللہ نے کہا کہ یقل لہو نصیب من, نصیب بنے ہوتا ہے حصہ, اس میں تو کچھ حصہ ہے, لیکن یہاں اللہ نے نصیب کا لفظ استعمال نہیں کیا. یقل لہو کفل منہا, اس میں سے ایک حصہ کنفرم اس کا ہو. کفل مطلب ایک حصہ. اگر کوئی کسی کو برائی کی نصیحت کرتا ہے, سفارش کرتا ہے برے کام کا, تو وہ کرے یا نہ کرے اس کا ایک حصہ کنفرم اس کو ملے گا, اس برائی کا جس نے ابھارا ہے. دیکھیں نیکی کی بات ہے تو اللہ میں کچھ حصہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نزدیک بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے, بہت چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. جو کہ اللہ دے گا تو بڑا ہی دے گا نیکی پر, یہ تو کنفرم ہے. لیکن برائی پر ہم کسی کو ابھار رہے ہیں, برے کام کی دعوت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ برا کرو, یہ دیکھیے بہت خطرناک چیز ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک حصہ کنفرم ہو گیا. کس کا؟ جو برائی کیا اس کا نہیں, جو کروایا اللہ کے بارگاہ میں, اس کے ایک حصہ کنفرم ہو گیا. وقال اللہ علی کل شیء مقیت, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئی ہے, ہر چیز پر اللہ قادر مطلق ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 86 سورہ نساء آیت نمبر 86 کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا, جب تم میں سے کسی کو سلام کہا جائے, کوئی سلام کرے, فَحَيُّوا, تم بھی اس کو سلام کا جواب دو, لیکن کیسے دینا ہے؟ بِأَحْسَنَ مِنْهَا, اس سے اچھے طریقے سے سلام کا جواب دو. یعنی یہ بات مومن اور مسلمان کی ہو رہی. اور ردوہا, یا اسی کے الفاظ میں لوٹا دو. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے سلام کے تعلق سے. پہلی چیز کیا اللہ نے کہا کہ جب کسی کو سلام کیا جائے, تو کسی کو کوئی سلام کہے یا سلام کسی کو کیا جائے, تو اسے چاہیے کہ اس کا سلام کا جواب اچھے طریقے سے دو. احسن منہا کا لفظ ہے, احسن خوبصورت کے وجہ سے حسین لفظ بھی آتا ہے. احسن سب سے اچھا, خوبصورت. تو اللہ کہہ رہے اس سے اچھا جواب دو. اب سلام میں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ تو حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی تم کو کہے گا السلام علیکم, تو یہ 10 نیکی ہے. تم کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, یہ 20 نیکی ہے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ 30 نیکی ہے. تو کوئی السلام علیکم بولے تو ہمیں کیا بولنا ہے؟ اس سے اچھا جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کرنے والے کو بھی یہ درس دیا جا رہا ہے کہ تم بھی اچھے سے سلام کرو, یعنی پورا سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سامنے والے اچھا جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معنی بیان کیا گیا ہے. تو کوئی اگر السلام علیکم کہے تو آپ پورا جواب دیجیے, اس سے اچھا جواب دیجیے, اس سے اچھا. اس نے آپ کو ایک دعا دیا, آپ 3 دعا دے دیجیے. السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو, تو آپ بولیے ورحمۃ اللہ, اور آپ کو اوپر اللہ کی رحمت بھی ہو, سلامتی بھی ہو. ورحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت ہو, برکات ہو, اور آپ کے رزق میں, آپ کی صحت میں, آپ کے مال میں, آپ کے پریوار برکت بھی. اتنا اچھا دین ہے ہمارا آپ کا کہ اگر آدمی 10 روپیہ دے رہا ہے تو ہم 30 روپیہ دے رہے ہیں. یہ فارمولہ اسلام کا ہر چیز میں ہے, صرف سلام میں نہیں ہے, مال کے خرچ کرنے میں بھی ہے. کہ اگر کوئی آپ کو 10 روپیہ دے رہا, آپ اس کو 30 روپیہ دیجیے, اللہ آپ کو 3000 دے رہا. یہ طریقہ اللہ نے بیان کیا. آگے اللہ نے کہا اور اردو ہے, اس کو ایسی لوٹا دو اسی الفاظ میں. یہ ہے منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے. کافر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم, لام کو ہٹا دیتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں, تم پر ہلاکت ہو. تو کیسے جواب دینا ہے غیر مسلموں کا؟ وعلیکم, اور تم پر بھی. اگر کوئی غیر مسلم کہتا ہے السلام علیکم, آپ پر سلامتی, وعلیکم, ٹھیک ہے آپ پر سلامتی ہے نا, وعلیکم دونوں چلا گیا. کوئی اگر آپ کو بد دعا دے رہا ہے السلام علیکم, آپ پر ہلاکت. جیسے عائشہ صدیقہ کے دور میں ہوا, یہودی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تھی, اللہ کے رسول بھی گھر میں تھی. اس نے کہا السلام علیکم, تو عائشہ صدیقہ غصہ ہو گئی, گرم ہو گئی. تو ناک کھا کے آلود ہو, تم تباہ ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی منع کرتے نہیں, یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے. تم بد دعا مت دو, وعلیکم کہہ دو. وہ اچھا کہے گا تو اچھا لوٹ جائے گا اس کے اوپر, برا کہے گا تو برا لوٹ جائے گا. یہ طریقہ ہے جواب دینے کا. تو اگر ہم لوگ خاص طور پر جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے بھائی تعلقات میں بھی ہے, کانٹیکٹ میں بھی ہے, تو ان کے دین کے اندر سب کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارا دین بڑا پاکیزہ ہے. ایک ایک چیز سمجھنا ہے, تو وہ سلام کر دیتے السلام علیکم, تب بولتے وعلیکم, بس ہو گیا. اب وہ اچھی نیت سے بولیں گے, اچھی نیت پہنچے گی. برا نیت پہنچے دوسری طرف پلٹ کے چل جائے گا برا.
ये तरीका है, इसीलिए कहा अल्लाह और रुद्दू है उसी अल्फाज में लौटा दो। पहले है कि कोई सलाम करे तो अच्छे से जवाब दो, अच्छे तरीके से, और अगर नहीं तो उसी अल्फाज में लौटा दो। और ये लौटाने का जो मामला है ये मुनाफिकीन, काफिरीन और मुशरिकीन के लिए है। इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, और बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का हिसाब लेने वाला है, एक एक चीज का हिसाब अल्लाह करेगा। यहाँ पे यानी ये बात याद रखिए कि जैसे हम दुनिया के अंदर जब आते हैं और उस मुल्क के कानून के अंदर एक कानून आता है, इनकम टैक्स का आता है कि आप कितना कमाएंगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आप उससे बच नहीं सकते। क्योंकि आजकल खासकर ऑनलाइन का दौरान, पहले तो ऑफलाइन था तो उसमें लोग टैक्स से बच जाते थे, क्योंकि वो जाहिर नहीं करते थे हम कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी तो हर चीज हमारी जिंदगी ऑनलाइन से घिर गई है, तो हम कितना कमा रहे हैं कितना खर्च करें, अगर हम कमाई को ऑफलाइन मिले, कमाई को ऑनलाइन मिले तो और पकड़े जाएंगे। ये कमाई नहीं, आपका खर्च इतना हो रहा है ना। बहरहाल कानून है मुल्क का, हर मुल्क का इनकम टैक्स का, कि आप जितना कमा रहे हैं उसमें से आपको गवर्नमेंट को इतना टैक्स देना है। ये कानून है, अल्लाह का भी कानून है कि अल्लाह ताला जो दे रहा है वो एक एक चीज पाई पाई का हिसाब करेगा, अल्लाह ताला देना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं कि हम बच सकते हैं। यानी चलो ये जहन कभी नहीं लाना है कि मैदान महशर में अरबों खरबों की तादाद होगी, काउंटिंग कैसे होगा, इतना वक्त लग जाएगा, और कौन है जो बैठकर सब हिसाब करेगा, थक जाएगी। दुनिया नहीं है ना, ये दुनिया के हिसाब किताब की तरह नहीं होगा। अल्लाह कहेगा कुन फयकुन तो हो जाएगा। अल्लाह किसी काम को जो करना चाहता है क्या बोलता है, कुन मतलब हो जाए, फयकुन तो हो जाता है। अरबों खरबों अगर लोग रहे, बिलियनियर रहे, मिलियनियर रहे, तो अल्लाह कहेगा सबका हिसाब आओ, सबका हिसाब पीडीएफ में शक्ल में सिर्फ बोलेगा हो जाए तो हो जाएगा। हम जब देखेंगे अपने हिसाब तो सही बात है, हाँ 2025 में हमको इतना तनख्वाह मिला, ये बोनस मिला, ये पड़ा मिला, टोटल लिखा हुआ है, ये हमने फितरा निकाला, ये हमने ज़कात निकाला, ये हमने इसको दिया, ये इसको दिया, इससे वही लाया, ये पुलाव का चावल लाइए, सब हिसाब लिखा हुआ है। जा हम सोच रहे अरबों खरबों लोग कैसे हिसाब होगा, और वहां एकदम बिल्कुल एक पेज हमको मिल रहा है, देख के हैरत में पड़ जाएंगे। जा हम तो भूल चुके थे कि 2022 में कितना फितरा निकाले थे, क्या निकाले थे, सब रिकॉर्डेड है सील और मोहर के साथ। अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है। अल्लाह के पास हिसाब देने जाए तो मेरे भाई ये हमेशा कोशिश करें कि हमारे हिसाब में गड़बड़ी ना हो, हिसाब किताब एकदम क्लियर हो, साफ सुथरा हो। क्योंकि दुनिया नहीं है, वो आखिरत है, वहाँ जन्नत जहन्नम का फैसला होना है। ये दुनिया नहीं है कि माध्यमिक दर्जा निकलने वाला है, कि एचएस का निकलने वाला है, कि जॉब का निकलने वाला है, निकले तो भी ठीक, नहीं निकले तो भी ठीक, है ना। ये आखिरत है, पास हो गए तो जन्नत, फेल हो गए तो बड़ा खतरनाक मरहला होगा। फेल मतलब जहन्नम, कोई नहीं बचा सकता अल्लाह से। तो हम अपना हिसाब किताब दुनिया के अंदर ठीक रखें। देखो उसके बाद अल्लाह ने क्या कहा, इसी हिसाब किताब को अगली आयत से अल्लाह ने जोड़ दिया। आयत नंबर 87 के अंदर अल्लाह ने कहा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ। अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला हुआ सिवाय उसी के, मगर वो नहीं है कोई माबूद मगर वो। इसको कहते अरबी के अंदर इस्तिस्ना। इस्तिस्ना मतलब होते खुसूसियत, खासियत, है ना, कि कोई नहीं आया सिवाय फला भाई की। तो कोई में किसी का नाम नहीं हुआ, लेकिन फला भाई का नाम हो गया। हम दावत दिए, कोई नहीं आया सिवाय फला भाई, यानी वो एकदम इंडिविजुअल, उसका नाम आ गया, पुरानी तौर पे वो हिट हो गया, उसका नाम आ गया। अल्लाह कह रहा है कि ला इलाहा इल्ला हु, नहीं है मगर वही, कोई माबूद नहीं मगर वही। कौन, पहले जिक्र है अल्लाह, अल्लाह के बारे में बयान हो रहा है, वही मतलब अल्लाह, ताकि शक ना हो किसी को। अगर लफ्ज अल्लाह हटा दिया जाए, ला इलाहा इल्ला हुआ, तो क्या समझेंगे इससे, मतलब नहीं है कोई माबूद मगर वो कौन। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन, किसकी बात हो रही है, कोई माबूद नहीं मगर कौन। तो ऊपर में लगेगा अल्लाह, अल्लाह वो है कि नहीं कोई माबूद मगर वही, मगर वही। लयजमअन्नकुम, अल्लाह तुम सबको यकीनन जमा करेगा। यजमअन्नकुम, जमा उर्दू का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, वही जमा है ना, जमा करना, इकट्ठा करना। लयजमअन्नकुम, अल्लाह तुम सबको जरूर बजरूर यकीनन जमा करेगा, इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन सबको जमा करेगा। ला रैब फीह, वो क़यामत जिसमें कोई शक नहीं, क़यामत के कायम होने को शक है, ऐसा लोग का ईमान है क़यामत नहीं होगी। हालांकि हम लोग क़यामत का हम लोग में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अल्लाह की किताब में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जिक्र है कि अल्लाह कह रहा है क़यामत के दिन सबको जमा करेंगे, तुम सबको। कुम हाजिर का सेगा है, लयजमअन्नकुम, कुम क्या है, हाजिर का सेगा, यानी जो पढ़ रहा है सब वो मुखातब है, आप सुन रहे हैं मुखातब है, जो यहाँ पे नहीं है इंतकाल कर उनकी बात ही खत्म होगी, जो मौजूद है, जो हाजिर है, तुम सबको अल्लाह यकीनन जमा करेगा, इला यौमिल क़यामत, क़यामत के दिन, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं। तो हिसाब वाली बात आ गई कि अगर हम सोचते हैं क्या पता हिसाब होगा भी नहीं हो, चलो हमने 40 साल 50 साल जिंदगी पाई, 50
कम से कम 30 रमजान तो हमें पा ही लिए, और जो भी छोटे मोटे गुनाह होंगे, लेकिन रमजान भारी पड़ जाएगा, ये गलत सोच है। रमजान भारी पड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आज रमजान इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा अगर अल्लाह ने चाहा तो, अब उसका हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये फाइल बंद हो गया 1 महीने का। ऐसा अल्लाह क्या नहीं होता है। आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो माहिर माशियात जिसको कहा जाता है, तो जब वो अपने मुल्क का बजट बनाते हैं तो वो बजट आज का नहीं बनाते, वो ऐसा बजट बनाते हैं कि आने वाले 20 साल तक का बजट हो, यानी उसका असर प्रभाव 20 साल तक रहे। जिसे हमारे मुल्क के डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ग्रेट पर्सन थे इकोनॉमिक्स के मामले में, और उन्होंने अपनी टाइम पे जब प्राइम मिनिस्टर थे तो जो बजट उन्होंने बनाया उसका असर हमने देखा, उनके जाने के बाद भी वो नजर आया। क्यों? ये उनकी क्वालिटी होती है। वो बजट निकालते हैं तो आज का इस महीने या इस साल का नहीं निकालते, ऐसा मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कानून लाया जाए कि आम जो पब्लिक है उस पर बोझ ना, और खास पब्लिक जो अमीर है उस पर भी ना, सब राजी खुशी रहे ना। ये होता है। हम ये कभी नहीं सोच सकते कि रमजान का मैटर अलग है, शव्वाल के बाद का मैटर अलग है, नहीं। हमारे सारे आमाल तय करेंगे कि रमजान वाला अल्लाह कबूल करे कि ना करे, ये उस पर निर्भर है। बस समझ में आ रही है? हमने कर लिया, अब हम शव्वाल में आ गए, अब रमजान में हमने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी, बड़े बड़े हमने अल्लाह से मुतालबे कर रखे हैं। अब अल्लाह देखना चाहता है शव्वाल में, ठीक है मांगा है उसको होल्ड में रख दिया, देना है कि नहीं देना है अब हमारा अमल तय करेगा। अगर पाबंदी रमजान की तरह रही तो अल्लाह कबूल कर लेगा, नहीं बंदा ने जो कहा कर दिखाया है ना। बंदा ने जो कहा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा ना, ख्वाब में दिखाया ना अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो क्या जरूरत थी उनसे ज़बह करवाने की? अल्लाह जानता नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह ने होल्ड किया, वेट किया। क्या कर रहे हैं? अल्लाह ने इंतजार किया, देख रहा है अल्लाह को सब पता है, करेंगे कि नहीं करेंगे उसको सब खबर है, लेकिन अल्लाह ने इंतजार किया क्या कर रहे हैं, हुक्म मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, है ना। वरना अल्लाह शुरू नहीं कह देता कि इब्राहिम मुझे पता है तू कर गुजरेगा, इब्राहिम मुझे पता है तेरा बेटा क्या जवाब देगा, इब्राहिम मुझे पता है कि बाप बेटे की गुफ्तगू क्या होगी, इब्राहिम मुझे पता है कि तुम कहाँ पर ले जाकर दबा करोगे। अल्लाह कह सकता था कि नहीं? अल्लाह को तो क़यामत तक कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने वेट एंड वॉच, अल्लाह ने इंतजार किया और देख रहा था ये लोग कर क्या रहे हैं। उसी तरीके से रमजान का महीना का इबादत है। अब ये हमने एक डिपॉजिट दे दिया, मैंने हमने 1 महीने का मेहनत कर लिया, वो जमा हो गया हमारे खाते में। अब उसके बाद हम ऑफिस जाए ना जाए नागा करते तो क्या पैसा देगा कंपनी हमको? बोलेगा आपकी वजह से हमारा काम नुकसान हो रहा है, आप महीने में 3 ही दिन ऑफिस आ रहे हैं, हमको आपकी जगह पे ऑप्शन किसी को रखकर काम करवाना पड़ रहा है, आपका जो पैसा कमाया उसी को दे दीजिए, आप क्या खोलेंगे आपसे? तो रमजान में जो इबादत कर रहे हैं इसकी कबूलियत का निर्भर हमें नेक्स्ट समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं, वो तय करेगा कि अल्लाह उसको कबूल करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आमतौर पे आजकल होता है कि चांद नजर आने के बाद शैतान से ज्यादा हमें जल्दी है आजाद होने की, उसको जल्दी नहीं है शैतान को, हमें जल्दी है कि कैसे हम जल्दी से आजाद हो जाए, फिर जो मनमानी करें, फिर आजकल फजर की नमाज होगी, फिर जोहर होगा, कोई पूरी मस्जिद खाली, पूरा फाका। खुशी के मकाम पर अल्लाह को हम नहीं पूछ रहे। ईद का दिन क्या है? खुशी का दिन है ना। अब खुशी के दिन अल्लाह देखना चाहता है कौन मुझे पुकार है, गम में तो सभी को पुकारता है, दुख में मुसीबत में या अल्लाह रहम फरमा, अल्लाह कैसी परेशानी आ गई, अल्लाह परेशान है ठीक कर दे। दुख में मुसीबत में सब लोग पूछते अल्लाह को। अब कल खुशी का दिन है, अल्लाह कल देखेगा, कल तो खास कर देखेगा कि कल जो 5 वक्त नमाज है उसमें कौन हमको याद कर रहा है खुशी खास कर। तो मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन जमा करेगा कल क़यामत के दिन, ये वादा है अल्लाह ताला का, जमा होना है वहां पे। ला रईबा फीही का लफ्ज़ इस बात की सबूत है कि उसमें कोई शक शुबा नहीं, डाउट नहीं है ना। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा फीही, वहां भी आया था ये ऐसी किताब है जिसके अल्लाह की तरफ से नाज़िल होने में कोई शक नहीं, ये अल्लाह की किताब है। यहाँ भी इन्होंने कहा ला रईबा फीही, क़यामत के दिन हम लोग जमा होंगे, कोई शक नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बेहतर सच्ची बात किसकी हो सकती है? कौन है जिसकी बात अल्लाह से बेहतर हो? अल्लाह भी कह रहा है कि अल्लाह ने कह रहा है क़यामत काम होगा, अल्लाह ने कहा, तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से सच्ची बेहतर बात किसकी हो सकती है? कौन है जो सच्ची बात अल्लाह से कर सकता है? उसके बाद आयत नंबर सूरतुन निसा आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गज़वा ओहद का जिक्र करते हुए उस वक्त में सहाबा के बारे में बयान किया। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फियतैनी, फमा लकुम, अल्लाह ताला सहाबा को कह रहा तो लोगों क्या हो गया है, क्या बात है? फिल मुनाफिकीना
फियतैन, मुनाफिकों के ताल्लुक से तुम लोग दो ग्रोहों में बटे हुए हो। क्या बात है? मसला ये था कि जंग बदर के बाद जब गजवे उहद होने वाला था, तो उसमें गज़वा उहद के बारे में मुकम्मल तफसील पिछले दर्स में गुजर चुका है, करीब 2 महीना पहले पूरी आयत इस पर आ रही थी। उसमें जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि उहद के लोग चूंकि बदर में शिकस्त खाए थे, तो वो तो बिल्कुल चिड़े हुए थे कि हमको बदला लेना है, तो कभी भी हमला कर सकते थे। तो अल्लाह के रसूल को खबर मिली कि उनकी तरफ से तैयारियां हो रही, मक्का से खबर आई है। अल्लाह के नबी ने मशवरा किया कि गज़वा उहद के बारे में मशवरा होगा। सब बढ़ गए, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई भी था, क्योंकि मुनाफिक था, वो मुसलमानों का भेष बदल के था। उसमें तय ये हुआ, किसी ने कहा कि मदीने में रह के लड़ते हैं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं अपने घर में नहीं आना देना, हो सकता है घर में घुस औरतों को मारना शुरू कर दे, हम लोग बाहर निकल के लड़ेंगे, जैसे बदर में लड़े। उहद के मुकाम पे लड़ाई हुई। तो मुनाफिकीन का काम क्या है कि लड़ाई झगड़ा में पीछे रहना है, ठीक है, ऐसा कर देना है कि बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, सब फितरत है मुनाफिकों की। ये आज के जमाने में भी हम लोग में से किसी के अंदर है, आप मुसीबत पे पुकारे उनको, तब देखिए कैसे बहाना बनाएंगे, आ जाते लेकिन बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, कुछ ऐसा मामला नहीं। वो तकलीफ से बचना चाह रहा है, और जब हमारे यहाँ शादी भी हो रही तो हफ्ता भर पहले आना चाह रहा है, ये भी मामला है। जब राय मशवरा हुआ तो ये तय हुआ कि बाहर लड़ेंगे। अब मुनाफिक फंस गए, तो जाना ही होगा, हालांकि हम थे उधर से। ये लोग गए और जाकर लौट आए, वापस आ गए मदीना। क्यों आ गए? नहीं अभी सही टाइम नहीं लड़ने का, अभी तो हम लोग बदर से फारिग हुए हैं, 2 हिजरी में 3 हिजरी में, एक ही साल में लोग नहीं अभी नहीं लड़ सकते, सिचुएशन सही नहीं। और यही लोग जब चूंकि उहद की लड़ाई टाई हो गई थी है ना मुसलमान ही जीत पाए थे ना काफी, इन लोगों ने ताना मारा था, हमने मना किया था ना, तो नहीं लड़ सकते। हम लोगों ने कहा था कि अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन कौन हम लोग बात कोई सुनने नहीं करता है, कोई सुनने नहीं चाहता है। अब इसमें सहाबा में 2 जमात हो गई। एक जमात ने कहा सहाबा कि उनसे भी लड़ा जाए, मुनाफिकीन जो वापस जा रहे हैं, पहले उन्हीं से भी लड़े, चले पहले इसी को गर्दन काट देते हैं, बाद में लड़ेंगे दुश्मनों से। एक सहाबा ने, एक जमात ने कहा चौधरी मसलहत है, और नहीं लड़ना चाहते, जबरदस्ती कैसे कर सकते हो, सामने तो कैसे नहीं जबरदस्ती कर सकते, अल्लाह के नबी का हुक्म है, कैसे जबरदस्ती कर सकते, नबी हमारे दर में मौजूद है। तो 2 राय बन गई। अल्लाह ने कहा फमा लकुम, तुम लोगों को क्या हो गया है, फिल मुनाफिकीना के मुनाफिकों के ताल्लुक से, फियतैन, अभी बोले ना अरबी में एक वाहिद होता है, 2 तस्निया 3 जमा होता है। जैसे यद मतलब क्या होता है, यद हाथ, यदैन मतलब 2 हाथ, उसी को बोलते हैं रफुल यदैन। रफा मतलब होता है बुलंदी, अरफा इसको उर्दू के अंदर कहते हैं रफउल यदैन, दोनों हाथ का उठाना। उर्दू समझ में आ गया ना? यद माने होता है हाथ, और यदैन मतलब 2 हाथ, ईद मतलब ईद, ईदैन मतलब दोनों। समझ में आ गया? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा को क्या बोलते हैं, ईदैन। तो अरबी ग्रामर के अंदर एक के बाद एक वाहिद 2 जमा नहीं होता है, 2 को तस्निया बोलते हैं, और 2 से जो ज्यादा उसको जमा कहते हैं। यहाँ पे मतलब जो फियतैन, फियतैन मतलब होता है जमा, अब फियतैन 2 जमा, 2 ग्रोह हो गए। तुम्हें क्या हो गया कि मुनाफिकों के बारे में तुम लोग 2 जमातों में तकसीम हो गए। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, उनके जो अमाल थे बदअमाल, अल्लाह ने उसकी वजह से उनको औंधा कर दिया, यानी पटक दिया, चारों खाने चित हो गए, अल्लाह ने उनको जलील कर दिया, रुसवा कर दिया, खार कर दिया। अतुरिदूना, क्या तुम चाहते हो कि अंतहदू, कि अल्लाह तुम उसको हिदायत पे ला दोगे, मन अज़ल अल्लाह, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया। एक ग्रोह था लड़ा उससे, एक ग्रोह ने कहा छोड़ देते हैं, मसलहत है, अब तो ऐसे नहीं कर सकते, नहीं आ रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि जिसको मन अज़ल अल्लाह, जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दिया, अंतहदू, तुम उसको हिदायत दे दो। क्या तुम ये चाहते हो? होगा ही नहीं ऐसा। जिसे अल्लाह गुमराह कर दे कोई उसको हिदायत दे सकता है, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे कोई उसको गुमराह कर सकता है? अल्लाह यही बैन करना चाहता है। क्या तुम चाहते हो कि जिसको अल्लाह ने गुमराह कर दे उसको तुम रास्ते पे लाओगे? नहीं। आगे अल्लाह ने कहा मैं युज़लिल्लाह, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे, फलन तजिदा लहु सबीला, तो कोई रास्ता नहीं पाता। लन अरबी ग्रामर के अंदर नेवर के माना होता है हरगिज नहीं, इसलिए अल्लाह ने ला तजिदा नहीं लाया, लम तजिदा नहीं लाया, लन तजिदा, नेवर, हरगिज नहीं कोई रास्ता पाएगा। जिसको अल्लाह गुमराह कर दे वो रास्ता नहीं पा सकता। आज का दर्स यहीं तक मुकम्मल हुआ, आयत नंबर 88 तक। इंशाअल्लाह ताला, चूंकि एक ऐलान सुनते जाए कि अब रमजान का ये आखिरी शनिचर इतवार है, अब इसके बाद हो सकता है कल या परसों ईद हो जाएगी चांद के हिसाब से, तो अगला जो दर्स होगा इंशाअल्लाह ताला वो अपने पुराने टाइम पर होगा, शनिचर दिन ना, सैटरडे को।
शनिचर को होगा। आप लोग ख्याल से इस ऐलान को सुन ले और बल्कि लिख ले कि नेक्स्ट वीक से, अगले हफ्ते से दर्स शनिचर के दिन होगा, मगरिब के बाद। टाइमिंग आपको दे दिया जाएगा। टाइमिंग अभी हम नहीं बोल पाए क्योंकि मगरिब का टाइम बढ़ रहा है, तो टाइमिंग का ऐलान जल्द अज जल्द आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन शनिचर को कंफर्म है, अगले शनिचर को, हाँ अगले हफ्ते शनिचर ही, हर हफ्ते शनिचर को होता था। रमजान में चूंकि संडे को इसलिए किया गया कि संडे को सब लोग फ्री रहते हैं, छुट्टी रहते हैं, शनिचर को सब लोग स्कूल जाते हैं, दिन में जाते हैं या अपने ऑफिस जाते हैं, दिन में जाते हैं, इसीलिए संडे को दिन में किया गया। ईद के बाद से शनिचर के दिन होगा, मगरिब के बाद। टाइमिंग आपको इंशाल्लाह ताला जुमा तक आपको दे दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। कोई सवाल हो ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी तरह ना 88 इमाम साहब, एक सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि किसी को नेकी की तलकीन करना तो उसमें कुछ हिस्सा मिल जाएगा, तो उसी तरह अगर जैसे कि ज़कात दे देने पे हम कुछ दे दिए, ज़कात अपना निकाल दिए, उसके बाद माल का इस्तेमाल करना कैसा है? आप ज़कात निकालें किसी को दे देंगे, जैसे हम अपना ज़कात अगर निकालें किसी को दे देंगे और मतलब हम ज़कात निकाल दिए, खत्म हो गया, ज़कात खत्म हो गया, अब तो मेरे पास अब पूरा माल का इस्तेमाल करना कैसा है? तो सवाल ये कि जैसे कोई आदमी ज़कात निकाले और ज़कात के जो मुस्तहकीन है उनमें तकसीम कर दिए। अब ज़कात खत्म हो गई, ज़कात 1 लाख रुपया हम निकाले, 1 लाख हम तकसीम कर दिए, अब पैसा पूरा जीरो है। अब उसके बाद कोई हमारे पास मदद के लिए आ जाए या हम करना चाह रहे हैं खुद से, तो वो कैसा है? देखिए, नेकी तो अभी मैंने कहा ना कि अगर कोई मुसलमान से हंस कर बात कर देते नेकी है। ज़कात का चूंकि मसला बड़ा सीरियस मसला इसलिए है कि जो साहिब हैसियत उन पर फर्ज है, उनको हर हाल में निकालना है। क्यों निकालना है? ताकि उनका माल पाक हो जाए। अब एक आदमी ज़कात निकाला, तकसीम कर दिया, पैसा खत्म, फिर आदमी पहुंच गया, या वो खुद ही चाह रहे और करना चाहते हैं, अब वो सदका होगा। तो क्या होगा? वो सदका होगा। और सदका से तो कभी नहीं रोका गया। ज़कात का ताल्लुक ईयरली है ना, सालाना है। जिसमें ज़कात क्या है? सालाना होता है। इतना पैसा हो, 1 साल से हो तो आप 2.5% निकालेंगे, साल में 1 मरतबा। साल में, अच्छा टैक्स साल में क्यों करते हैं ना, टैक्स की तरह है। जैसे कोई इनकम टैक्स भरता है, साल में कितनी भरता है? 1 मरतबा भरता है, 6 महीने पे नहीं देना पड़ता। उसी तरीके से ज़कात है कि जो साहिब हैसियत है, जिनका माल निसाब को पहुंच गया है, 1 साल से है और उतना है, तो वो 1 साल में 1 बार निकालेंगे। लेकिन सदका तो साल भर करना है। और सदके में साहिब हैसियत की शर्त नहीं है, जो जितना कमा रहा है उसमें से कर दे। कोई रोजाना का 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से कर दे। 90 रुपया अपने घर पे खर्च करे अपनी जरूरत पर, और 10 रुपया गरीबों पर खर्च करे। तो जो आपका सवाल है वो बड़ा अच्छा सवाल है, उसमें आप खर्च करें, वो सदका है। वो सदका है, वो सदके में चले। जैसे फितरा, अगर ईद की नमाज से पहले हम निकाल देंगे तो फितरा है। अब भूल गए, ईद के बाद निकालेंगे तो आम सदका हो जाएगा। कुर्बानी का जानवर ईद से पहले जमा कर देंगे तो आम जबा होगा। तो आप सदका कर सकते हो, उसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है। और एक सवाल, इसलिए सवाल भी अच्छा है कि बहुत से अमीर हजरात ये समझते हैं कि हम किसी की मदद ज़कात से करें। अब इन्होंने ज़कात निकाला, मिसाल के तौर पे या हम लोग 1 लाख रुपये हम बांट दिए। अब एक आदमी बीमार है, बड़ा सीरियस है ना, और ऐसा सवाल आता है कि इमाम साहब क्या फितरे के पैसे से उसका इलाज करवा दे? फितरे ही पे उसका इलाज टिका हुआ है, हम उसका इलाज फितरे ही पे टिके हुए हैं। और बढ़ चढ़ कर दे, अपना जाती पैसा दे उसको, हम फितरा से क्यों जुड़े हुए हैं? तो समझ आ रही है ना, कोई मजबूर है, इंतहाई उसको पैसे की जरूरत है और गरीब है, जो भी दिक्कत में है, तो फितरे ही पर क्यों हम टिके रहेंगे? ज़कात पर क्यों टिके रहेंगे? ज़कात तो बांट चुके हैं, खत्म हो गया। अपना पैसा नहीं दे सकते जो रखे हुए हैं, बिल्कुल गए। वही तो मेन काम है, सबका खैरात और इंसानियत की मदद करना हुआ, तो बिल्कुल आप करिए। अच्छी चीजें साल भर कर सकते हैं। ज़कात का ताल्लुक ये है। हम सब सवाल है, जैसे बहुत से गैर मुस्लिम लोग हम लोग से मिलते हैं, हम लोग सलाम करते हैं, वो लोग हम लोग को सलाम करते हैं, तो हम लोग जब मिले तो हम लोग क्या बोले? तो बोले तो जवाब दिए, तो सवाल नहीं, मतलब हम खुद से आगे चल के जैसे हम किसी से मिल रहे वो आदाब बोली, आदाब नहीं बोलते हैं, क्योंकि उर्दू का बेहतरीन लहजा है। पहले के जो नवाब वगैरह होते थे, आदाब आदाब करके आते बैठते थे, आदाब बोलिए। वो आपसे सवाल करे तो बोले नहीं, हमारे शरीर इजाज़त नहीं देती। आदाब में क्या परेशानी? ये तो कोई गाली नहीं है। उर्दू तो एक मीठी जुबान है, एक तहजीब है बल्कि, है ना। आज देखेंगे बहुत से गैर मुस्लिम हमारे भाई उर्दू का बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं कि उसके बगैर जुमला ही मुकम्मल नहीं होता। तो वो अभी कुरान की जो आयत गुजरी कि अच्छा जवाब दो, तो ये मुसलमानों के लिए है। जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो कितना भी कह दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जो भी कहे, आपको सिर्फ क्या बोलना, वालेकुम, समझा कि ना। अब अगर सवाल करते हैं भाई हम तो आपको
अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं, आप वालेकुम बोल रहे हैं, बोले हमारी शरीयत का ही काम तालीम नहीं है। उनको एक मिसाल दीजिए, देखिए मक्का जो है, मक्का के लिए जो हुदूद हरम है उसमें शर्त है जाने के लिए कि मुसलमान ईमान वाला। आपका प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा तो वहाँ नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो जलील आदमी है ना, ताकि समझ आ ना, मक्का में नहीं जा सकता। मक्का जाने के लिए शर्त है कि आपका ईमान इस्लाम होना चाहिए। अब आप हमसे कहेंगे कि आप लोग मक्का में क्यों नहीं रहते हैं, शिकायत करेंगे कि हम लोग चाहते काबा देखें। नहीं नहीं, वहाँ कानून नहीं जा सकता, हुदूद हरम में मक्के की बात है। उसी तरीके से ये भी कानून है कि आपको सलाम नहीं कर सकते, बल्कि अदब है, रकब है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे दिल में भूख से आपके लिए हम गाली देते हैं। ये हमारे दीन का मामला है, ईमान का मामला है। हम तो आजकल आपसे कुछ है क्या, लैलतुल जायजा कहा जाता है, ऐसे कुछ लैलतुल जायजा कहा जाता है, जायजा, जायजा। तो लोग जो है हाँ, सर जैसे कि सवाल ये कि आज का रात शब कदर की जगह कोई है लैलतुल जायजा, चांद रात के साथ लैलतुल जायजा बोलता है, पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस्लाम में चांद रात ही कुछ नहीं है, चांद देखने का है। चांद देखो, क्यों देखो? ताकि गवाही मिल सके कि हाँ कहाँ कहाँ चांद नजर आया। अभी तो चीज हम लोगों ने खत्म कर दी। हम में से हर कोई दूसरे पर डिपेंडेंट है, उधर से खबर आएगी, इधर से खबर आएगी। चांद देखना चाहिए, सुन्नत तरीका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चांद देखो, गवाही दो, है ना। और ये सब कुछ नहीं है, तो जैसा वगैरह चांद ऐसे ऐसे कुछ होता है कि अचानक कुछ खास इबादत होती है। हम लोग मैंने सुने हैं, सुनते हैं। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है शरीयत में, ऐसा कुछ नहीं। जितने इबादत किए सबका हिसाब आता है। मजदूरी की रात जिसको बोलते ओ उसी से मुझे जायजा लेना। हाँ, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। हम सब कुछ ऑफिसेज में काम का पार्ट होता है, जैसे नमस्ते कहना। हाँ, जैसे हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो हिंदी वाले लोग को बोलना पड़ता है नमस्ते। ये मतलब खुशी से नहीं कह रहे हो। देखिए इसमें क्या है ना कि जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा इदारा है हम लोग के मुल्क के अंदर, या ऐसा कोई शोबा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको ये चीजें करनी ही होंगी, मतलब कंपलसरी है। आप नहीं करेंगे तो आपको हटना भी होगा। तो एक देखिए, एक क्या कि सबसे पहले हमको देखना है अकीदा, क्या ये चीजें हमारे अकीदे से टकरा रही हैं? क्योंकि हमको जन्नत हर हाल में चाहिए, उसके लिए हम कोई भी बलिदान देंगे। ये फॉर्मूला याद रखें। ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो गर्मी बहुत खतरनाक है, उससे भी खतरनाक है। तो पहला टारगेट ये कि हमको जन्नत चाहिए। अब जन्नत पाने के लिए अब मान लीजिए हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्या हम कुर्बानी नहीं देंगे? रात को नहीं पढ़ेंगे, रात रात भर पढ़ेंगे, 18-18 घंटा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इधर ट्यूशन क्यों आप पढ़ रहे हैं? यही तो कुर्बानी है। वो हमको चाहिए, हमको एग्जाम पास करना है। तो जन्नत चाहने के लिए क्या करना हो, सोचिए। तो आप देखिए कि इसके बारे में डॉक्टर जाकिर नायक ने नमस्ते का जो क्या है पूरा बायोडाटा बयान किया था कि ये अपने आप में अकीदे के खिलाफ एक चीज है, अपने आप में। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि वही एक नौकरी और इसके अलावा कोई नौकरी। रज़ाक तो अल्लाह ताला है, ये बात याद रखिए। रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है। आप अल्लाह के लिए नौकरी छोड़ दें, अल्लाह के लिए, और दुनिया के अंदर अल्लाह आपसे कुर्बानी चाहता है, तब आखिरत में अल्लाह में जन्नत देगा। ये जो आप एक तो ऐड किए कि नहीं दिल से हम नहीं बोल रहे, नहीं, बात दिल से नहीं है, यह बात वो भी नहीं है। आपको हमेशा बोलना है, एक बार दोबारा नहीं बोलना है, हमेशा बोलना है ना। तो हमेशा हम कुफरिया कलमा पढ़ सकते हैं? बताइए, नहीं बोल सकते। तो हमको वहां से हटना होगा, क्योंकि वो मेरा ईमान, अगर अकीदा ही नहीं बचा तो फिर कोई फायदा नहीं इबादत करने का। नमाज रोजा पूरा अकीदा से ही नहीं, हमारा अल्लाह के ताल्लुक से कोई फायदा नहीं। तो हम वहां पे हट जाए। जैसे एक सवाल हुआ था इसी ताल्लुक से, जो आपका सवाल है उसमें एक सवाल नमाज का हुआ था, मतलब शेख के फातुल्लाह सलामली से हुआ था कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑनलाइन सवाल और जवाब चल रहा था कि कॉल पे सवाल था किसी सवाल पूछने वाले का कि हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और हम 10 बजे ऑफिस के काउंटर पर बैठते हैं तो हमको शाम तक फुर्सत नहीं मिलती, लंच टाइम के अलावा। और हमारी जोहर की नमाज छूट जाती है, असर छूट जाती है, मगरिब छूट जाती है। इतनी मशगूलियत है, कभी कभी फाका रहा तो हम पढ़ लें, लेकिन उसके भी चांसेस बहुत कम है। तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप जॉब छोड़ दीजिए। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर उसके मुकर्रर वक्त पर फर्ज है। वक्त का जिक्र अल्लाह ने किया। अब हम 40 साल जॉब करेंगे तो 40 साल जोहर छोड़ दें हम? बात समझ आ रही है? 40 साल तक असर छोड़ दें, 40 साल तक हम मगरिब छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने साफ लफ्ज़ में कहा कि आप क्या उसके अलावा अल्लाह ने जॉब पैदा किया है? क्या उसके अलावा रोजगार दुनिया में है? तब छोड़ दीजिए।
नहीं है तो पकड़ कर, जैसी बात है, बहुत से काम है, क्योंकि नमाज सबसे पहले है। हमारी पैदाइश का मकसद इबादत है, और हमें फर्ज नमाज ही नहीं मिल रहा है तो हमको छोड़ना होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए छोड़ रहा है। उसमें हम अपना मन मिजाज नहीं लगा सकते कि नहीं हम घर पे जाकर पढ़ ले, पूरा कितने दिन तो पढ़ेंगे, सोचिए कितने दिन, 40 साल तक हम घर पे नमाज पढ़े, जोड़ा सर मगरिब। तो जिनकी यहाँ आसानी है, कभी इस्लाम नहीं मना करता कि उसको छोड़ दो, जहाँ परेशानी है वहां पे हमको पहले अपनी इबादत करनी है। तो अकीदा इबादत इसको फहरिस्त में अव्वल नंबर पे रखना है कि पहले ये चीज है। और अल्लाह ताला कहेगा क्या इसके अलावा मेरा बंदा कोई और जो हमने पहले किए थे, तो क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह तेरी इबादत से समझौता, क्योंकि अल्लाह पूछेगा, अभी वो बात आई कि ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामह, तुम सबको क़यामत तक जमा करेगा, पूछेगा एक एक चीज के बारे में, क्या इसके अलावा ऑप्शन था कि नहीं, तो बताओ। हमने दुनिया में तुमको कमाने के लिए नहीं भेजा था, अपनी इबादत के लिए। कमाई तो उसकी दूसरी वजह थी कि उससे हमारा अहल का घर वालों का पेट भरे। अगर इस तरह कोई काम है आप छोड़ दो। इस पे एक सवाल और डालेंगे और था कि नमाज तो वक्त पे मिलती है लेकिन जमात नहीं मिलती है ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ, उसको ये बता देना है कि जैसे सवाल में क्या है कि नमाज टाइम पे मिल जाए, जमात नहीं है ना। देखिए मस्जिद में जो अजान होती है उसका मकसद होता है जमात करवाना, जमात के लिए अजान दी जाती है ताकि लोग सुनकर आए तो जमात के साथ नमाज पढ़ें। और अल्लाह के नबी को हदीस याद रखेंगे कि जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है ना। आपने ये जुमला जो कहा कि अकेले नमाज पढ़ने से, इस पर गौर कीजिए। इसका मतलब कोई अकेले पढ़ सकता है, कब पढ़ सकता है, जब इस तरह के ऑफिस में, जैसा आपका जो सवाल है कि आप अकेले हैं, उसमें भी आपको हिकमत अपनाना है। कोई ना कोई तो मुसलमान मिल जाएगा, है मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं मस्जिद जाना, आप समझ रहे हैं। कोई ना कोई तो स्टाफ होगा, या कोई ना कोई बाहर का कोई होगा, अंदर का कोई होगा, कस्टमर कोई होगा। ये हमें अपने ईमान की खैर करनी है। तो ऐसा तो नहीं कि आप वाहिद मुसलमान होंगे, कोई दूसरा मुसलमान होगा, आप उस पर मेहनत करेंगे। अगर बेनमाजी हो तो नमाजी बनेंगे। हम देख रहे हैं ना क्रिकेट के मैदान में क्या हो रहा है, एक मुसलमान खिलाड़ी कई लोगों को उससे मुतासिर कर दे रहा है। उसके बाद अगर वो उसकी बात नहीं भी मानना है तो उसके लिए उसका दिल साफ हो जा रहा है। तो दूसरा अगर भाई आपको मिल गया तो नमाज कर लीजिए टाइम पर, लेकिन नमाज वक्त पर पढ़ना है, ये बात याद रखें। वक्त के से बेवक्त नहीं होना चाहिए। इस पे एक खवातीन के लाइन से सवाल है मतलब कि अक्सर खवातीन सिंगल नमाज पढ़ती है, मतलब घर पे सब है लेकिन जमात कोई नहीं करता। खवातीन का जो सवाल है कि अक्सर खातून सिंगल पढ़ती हैं, तो औरतों के लिए जमात लाजिम नहीं, मर्दों के लिए, बात याद रखिएगा। औरत के लिए जमात लाजिम नहीं है, मर्दों के लिए जमात बिल्कुल लाजिम है। इसमें सोने पे सुहागा है कि अगर औरतों को जमात मिल जाए तो अच्छी बात है। यानी अगर घर के अंदर खवातीन है, 4-5 औरतें हैं, कोशिश करे कि जमात बना के पढ़ ले, ठीक है। नहीं पढ़ती, अलग पढ़ती, कोई दिक्कत नहीं, उनको पूरा सवाब मिलेगा, क्योंकि उनके लिए जमात लाजिम नहीं है। इमामत औरत ही करेगी। हाँ, औरत की औरत ही करे। और उसका भी तरीका है, हम लोग जैसे मर्दों में इमाम आगे रहते हैं, उनमें आगे नहीं रहे, उसी लाइन में। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक औरतों का एक लाइन लग गया, सिर्फ औरतें। अब एक जो इमामत करेगी वो आगे नहीं जाएगी, यही तो हमको नहीं मालूम, वो उसी लाइन में रहेगी, बीच वाली कोई औरत इमाम बनेगी। ये तरीका है, याद रखिएगा। औरतों के जमात में औरत आगे नहीं जाएगी, जो प्योर लेडीज का, इसमें जेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो बीच की जो औरत होगी, जो इमाम होगी, बीच में आ जाएगी, सीधा बात है। जो इमाम बनेगी वो बीच में आ जाएगी, और जो बगल वाली होगी वो तकबीर, कोई भी तकबीर बोलते, बगल वाला बोलते, इधर वाला बोलते, उधर वाला बोलते, इकामत जिसको बोलते हैं। औरतों की जमात ऐसी होती है। और अगर इमाम उसमें जैसे कि इमाम जैसे बेटा हो या शौहर हो या भाई हो तो पीछे औरतें लग तो सकती फिर हैं। वही फॉर्मूला हो गया, जैसे मस्जिद में होता है, हम नमाज पढ़ाते हैं तो मेरे पीछे मर्द होती है, पीछे औरतें। अगर मर्द आ गए तो मर्द आगे चल जाएंगे। मान लीजिए 2 मर्द है, एक बेटा है, एक शौहर है, तो शौहर इमाम बन गया, ठीक है। और आप जानते हैं जमात के ताल्लुक से कि जब 2 लोग मर्द जमात करेंगे तो एक साथ खड़े होंगे, मालूम है फॉर्मूला। मान लीजिए आप दोनों की नमाज छोड़ दीजिए, आप लोग मस्जिद में आए तो आप लोग आगे पीछे नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे, ठीक है। ये इमाम होगा और राइट साइड वाला कौन होगा, मुक्तदी। अब तीसरा आदमी जब आएगा तो इमाम को सिर्फ पीठ पे हाथ दे, इमाम को मसला मालूम तो होना चाहिए, हल्का सा सिर्फ छुएगा तो इमाम आगे बढ़ जाएगा, चलकर आगे। अगर आगे जगह हो तो, आगे जगह नहीं है तो पीछे वाले मुक्तदी को तीसरा आदमी खींच लेगा, वो हल्का सा पांव हाथ रखेगा तो समझ जाएगा कि पीछे कोई आ गया है। तो जो तीसरा आदमी आ रहा है उसको तो मालूम होना चाहिए ना कि इमाम किस तरफ है और मुक्तदी किस तरफ है। इसमें तो बहुत सारे मार खा जाते हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारे बच्चों को। तो आपका सवाल क्या है, 2 लोग हैं तो दोनों बाप बेटा एक साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। पीछे औरत लोग हो गई,
बात समझ आ गई? उस वही हाल है, जो नॉर्मल चीज है, लेकिन औरतों की हम जमात बता रहे हैं, औरत की जमात होगी, औरत किसी में नहीं। अच्छा, ईद बकरीद की नमाज औरतों की नहीं है? हाँ, ईद बकरीद की नमाज औरतों पर है। उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला की हदीस सही बुखारी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरतों की जमात से कहा कि तुम लोग ईदगाह जाओ। सवाल किया सहाबियात ने कि अल्लाह के नबी बहुत सी औरतें हज से होती हैं, तो अल्लाह रसूल ने कहा वो भी जाए ईदगाह, अलबत्ता वो नमाज नहीं पढ़ेगी, मुसलमानों की दुआओं में शामिल है। उनको भी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईदगाह जाओ, जाना चाहिए। इसीलिए हम टाटा के अंदर जब गए थे तो एक मस्जिद में जहाँ पे हम नमाज पढ़ाई, वहाँ एक चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ हम देखे कि जो लेडीज़ का सेपरेट इंतजाम था, उसमें भी हैज वालों का सेपरेट था। ये एक अच्छा चीज़ हम देखे। यानी ईद में जो औरतें जाती हैं तो उसमें बात वो लिखा हुआ है, तब तो काफ़ी A4 साइज में लिख दिया जाता है कि जो पीरियड से वो अंदर चले जाए, जो पाक है उधर रहे, तो नमाज वाली पढ़ती है पाक वाली, फिर जब दुआ होता है तब सब लोग शामिल हो जाते हैं। तो हदीस पर अमल होना चाहिए। तो औरतों की जमात समझ आ गई ना कि औरतों की जमात कैसे होगी, मर्द और औरत की जमात जब मिलकर करेंगे तो कैसे होगी। इमाम साहब, एक तो ये कुछ बता दिए ईद के दिन मसनून अमल कुछ। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, अच्छा हुआ बता दिया, तो खत्म ही करने वाले थे। ईद का जो मसनून अमल है, चूंकि हो सकता है पूरे चांसेस से करीब हो, तो हमें पता होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का अमल कैसे करते थे, ईद के दिन क्या अमल करते थे। सबसे पहले ईद के मसनून अमल को जान लें। मसनून अमल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके, एक पहला अमल है, तो पहले तो चांद निकलने के बाद तकबीर पढ़ना, ईदैन की तकबीर जो है वो याद होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो आप लोग हमको मैसेज करेंगे तो हम भेज देंगे, वैसे स्टेटस पे लगा हुआ है, हाँ देख सकते हैं। सबसे पहले चांद नजर आने के बाद ईद की तकबीर पढ़ना शुरू करना है। क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, लिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर कसरत से घर में पढ़ना है, मगरिब के बाद से शुरू हो जाए। औरतों से क्या पढ़िया है ना, तकबीरात पढ़ना है। और जब ईदगाह जाए, क्योंकि ईद की नमाज का सुन्नत तरीका ईदगाह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरा बयाबा में नमाज पढ़ी। अगर ईदगाह का इंतजाम ना हो तो मस्जिद में पढ़ सकते, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, लेकिन किसी को पहले नहीं क्या कहते हैं इंतजाम करना चाहिए ईदगाह का। ईद के लिए जब जाए तो पहले मसनून तरीका गुस्ल करें, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन लें। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला हदीस के अंदर बयान करते हैं कि 3 मसनून अमल ईदगाह का, एक गुस्ल करना है, दूसरा ईदगाह जाना है, और तीसरा ताक अदद खजूर खाना है। तो हम सीरियल वाइज बता देते हैं। ईद की जो मसनून अमल है कि नहा धोवा लेना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, कोई जरूरी नहीं कि नया कपड़ा, साफ सुथरे कपड़े, पुराने भी होंगे साफ सुथरे, अच्छे नया नहीं जिक्र, अच्छे कपड़े होंगे। गुस्ल करना है, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनना है, मर्द है खुशबू लगा सकते हैं, औरत को तो खुशबू नहीं लगाना है। ताक अदद खजूर खाना है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 जितना ताक में खाए, जी खाए ताक में खाए। तो घर में अगर 10 अफराद हैं तो उस हिसाब से खजूर का इंतजाम करें, सिर्फ अपना नहीं सोचिए यहाँ आदमी अपना खा के निकल लिया, घर वाले बेचारा सोच रहे क्या बच भी नहीं किया, तो एक ही को लेके आए थे किसी मान पे लाए। अरे हम लोग काम करें, बीवी है, बच्चे हैं, जो बाल बच्चे हैं, जो और भाई वगैरह जो नमाज के जाएंगे, तो एक के हिसाब से इतना अपराध रख ले, है ना, ताक में लेके होना चाहिए। या पूरा खजूरी खरीद कहते कि जो खाएगा ताक में खाएगा। ये एक मसनून अमल है। तीसरा मसनून अमल ये है कि ईदगाह जाना है। चौथा मसनून अमल एक रास्ते से जाना है, दूसरे रास्ते से आना है, रास्ता बदल के। यानी मान लीजिए कि ये मस्जिद है, जो घड़ी वाली मस्जिद है, हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, तो इस रास्ते से गए तो आएंगे दूसरे रास्ते से। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने क्या करते हैं, पहले ही दूसरे रास्ते से जाते हैं ताकि आते सीधा अपने, है ना, भूल जाता है, आदत है ना, मस्जिद से निकल के घर जाने का आदत है। तो उठे और उसी रास्ते से चले गए, सुन्नत पे अमल नहीं हुआ, तो हम जाते ही दूसरे रास्ते से ताकि निकल सीधा घर चले जाए। सवाल खाने जल्दी हो जाता ये भी हो सकता है कि जल्दी भूख भी लगा रहता है, तो ये एक मसनून अमल हो गया। है। सवाल के 6 बजे कब से वैसे दूसरे दिन ईद के बाद से। ईद के बाद इसकी जस्ट ईद एक दिन होता है, याद रखो, लोग उर्फ आम में है कि ईद 3 दिन होता है, ऐसा कुछ नहीं। ईद एक दिन होता है, कुर्बानी 4 दिन होता है। तो ईद की एक दिन के बाद से आप शव्वाल के रोजे रखिए, जुमा छोड़ के, ठीक है। अच्छा, इस पे एक सवाल है वहाँ जिसका ईद की नमाज छूट जाए, ऐसे लेट हो गया, सो के उठने में लेट हो गया, ठीक है, या कोई वजह से छुड़ी है। कोई वजह से भी छूटी है, तो उससे वो पढ़ क्या करेगा? खुद से पढ़ ले, हम नमाज होगी, तो नफिल नमाज ज्यादा ये भी तो है उसकी, हाँ। इमाम साहब की जमात वहाँ छोड़ जाती है तो दूसरा जगह में अलग टाइमिंग में रहता नहीं, है। इनका सवाल है कहीं जमात ना दी, उसको बोल रहा है 11 बजे। वो तो बगल में दूसरी बात है, लेकिन कहीं जमात नहीं। 11 बजे तक जमाते। एक आदमी को हम जानते हैं जो 11 बजे से कोटी के थे, हाँ हाँ, और उसी का फोन आया कि हम साहब उधर हालत बनी सब गलत जाके सोने वाला है, इसलिए भी घर का आदमी उठाया है, लेकिन उसे उतना ना छोड़। हम ट्रेन में थे, इसकी घर में फोन आया, ठीक 11 बजे गाड़ी फोन है, गाड़ी पे फोन है, अरे भाई कैसे सो रहे थे, घोड़ा बेच के सो रहे थे, कहा रात भर हम जगे थे, ऐसा नहीं पढ़े, क्या करें, पढ़ लीजिए अपने से।
वैसे कज़ा है नहीं तो नफिल नमाज सुन्नत है। पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ खुद से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इमाम साहब एक कॉमन क्वेश्चन, गला मिलना कैसा है ईद नमाज के बाद? हाँ ये बता देते हैं कि ईद के दिन देखिए गला मिलने का इसमें कोई सबूत नहीं मिलता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से फारिग होकर गला मिलते थे। तो मुसाफा तो हर हाल में करना है, तो गला मिलने कोई सबूत नहीं है ना। कोई साफ हदीस नहीं आती है कि आप ईदगाह से फारिग होते थे और सारे जो है गला मिलते। चूंकि हम हिंदुस्तानी कल्चर है, हम लोग ईद के टाइम पर दूसरे से गला मिलते हैं, मिलना चाहिए, लेकिन इसको ईद के दिन मिलने से क्या होगा, गलत मैसेज चल जाएगा पब्लिक के अंदर कि उस दिन ही मिलना है। आप आज ही मिल लीजिए जुमा के बाद, जुमा के दिन कोई गला मिलता है, पॉइंट नोट कर, जुमा में तो लोग जमा होते हैं ना, पूरी मस्जिद भरी जाती है, जैसे ईद में भरी जाती है, उस दिन लोग गला क्यों नहीं मिलते? उस दिन मिले तो एक मैसेज चल जाएगा, हाँ भाई हम कभी भी एक जगह जमा हो तो गला मिल सकते हैं। ऐसे क्या होगा, अरब के अंदर क्या होता है, और हम यहाँ पर भी देखते हैं कि कोई लोग बाहर से, बेंगलोर से, मुंबई से या कहीं से आते हैं तो गला मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, हम लोग एक गला मिल लेते हैं। तो अगर इस तरीके से आपकी नीयत है, बिदअत की नीयत नहीं है, तो आप एक गला मिल जाए, एक 3 मरतबा मिल लीजिए, क्योंकि इसमें भी सलफ साले ने इजाजत दी है, तो खुशी का मौका है, चाहते हैं, लेकिन उसको ये नहीं समझना है कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका है ना। मुबारकबाद देना है, मुबारकबाद देना। दर्स के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों की मेहनत, मशक्कत और इबादत को कबूल फरमाए। जो हमारी और आपकी परेशानी, अल्लाह इस माह मुबारक में तमाम परेशानियां रमजान के साथ साथ परेशानियों को भी लेके चले जाए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स खत्म हो गया है, आप लोग ऑफलाइन